हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे। इसका बर्थडे है सर। Thank you so much, dignitaries, for doing the honors. May I now request all the dignitaries to kindly come onto the dais and take their. May I have the pleasure of inviting all the dignitaries on the stage and kindly. We also welcome Mr. Mukesh Rashidi again with a. Thank you, welcome, sir. Well, I think Dheeraj Kumarji is not around. Okay, may I request to kindly present the token of love to Mr. Rajiv Nigamji. Okay, Rajiv Nigamji is not arrogance, has proved that his determination is indeed stronger than his destiny. May I now have the gracious friend and Secretary General of All India Achievers Conference and the man behind the gold. You all have achieved milestones for which you are here. For that moment of glory and recognition which is never around the corner. But before that, friends, I request these today, the best of brains, the best of minds in the chosen field of activity. We have two segments of our instrument. One, the celebrities from the film industry across the country, but they are celebrities in their own right. They have excelled in the chosen field of activity. Category Arch of Excellence Awards. And the first award is Dr. Father Paul Fernandez S. Ladies and gentlemen, let's put on the stage. When reading his citation, an epitome of academic excellence, he has done remarkable contribution in spreading education. Usgaonkar on the dais. Goes to Titiksha Public School. Well, the award goes to Titiksha Public School for its international standards in education school. Congratulations once again to Titiksha Public School. Well, friends, we also have amidst us the gracious presence. Ladies and gentlemen, let's welcome Rashmi Desai. May I request token of love to be presented to Rashmi Desai? Danis. Danis पीछे। Can we have one bouquet of flowers? Hearty welcome to our beloved Vaishali. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and welcome her. Thank you so much. Moving back. Unleashed as an exceptional recruitment solutions and services for all, Mr. Sampat Lal Kankani. At her learning age, expects that the world recognizes her city, her family, and herself. Through her passion and hard work, and true to her belief and dreams, she set up the Designer Hub and aptly named as a trial. Certified as the hub with best commercial collection, she is all set to launch her collection in Dubai and all over the world. Ladies and gentlemen, let's hear it out once again. Sir, same dress है ये। Has also acted and directed television serials. Apart from acting, Nawal is also an artist who holds exhibitions of her photographs and paintings. She is best known for her acting in films like Chashme Badur, Mirch Masala, and more recently Leela and Preeti Chakra. Recently, she also played a cameo in BA Pass. Please give us a standing ovation. Request, please. I want to thank all of you, Abhishek, old friend,
from many years ago, 80s. Hey, Chacha. The jury here, Photo. my friends, and so many of them. And I see some very enthusiastic young people, artists. Never met them. I'm going to just met. I know the faces and I don't know the names, so you have to excuse me for that. Rashmi, yes, and Nandesh, yes. I've been watching your work and really appreciating what you've done on television, in your dancing, and so many episodes that I've watched you endlessly. It's a great feeling. I mean, there were years and years when I didn't get any single award. And I used to think, what must it be like to go up there and receive an award and be recognized for your work? And then, when I had forgotten all about awards, then those years the awards started coming. So it's a very strange journey for an artist when you're all there, you're all enthused about working, and you feel that I've done this, I've done that. Have people seen it? Have they not? There's a lot of excitement, there's a lot of anxiety. But actually, it takes years and years of hard work to get there. And now I feel, okay, if you're recognized at this stage, if your work is recognized now, then probably it's been worth it. The whole journey, the travel to this spot has been worth it. And I want to thank everyone for all of you who are here this evening. Thank you all for being here for all of us. Thanks. Thank you so much, Dilpiji, for the wonderful address to our audience. Become one of the top heroines in the Marathi film industry with super hits such as Haman De Dhamal, Sagli Kade, Bomba Bomb, Sabat Machi Ladki, Shejari Shejari, Ek Hota Vidushak, La Pandav, Aflatun and others. She has also starred as the lead actress in films like Ghar Aaya Mera Pardesi, Pathrila Rasta, Mangal Pandey The Rising and Mr. Ya Miss and Jigyasa. Varsha is extremely busy in Marathi films. Her recent films were Dunyadari and Tutu Tutu. My dear friends, let's have a huge round of applause for Varsha. May I request Varsha ji to kindly come on the podium. Honorable Shri Rupesh Rishi ji, Honorable Anil Dhawan ji, Avtar Gill ji, Mr. Abhishek Bachchan, Rashmi Desai ji, other dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, Namaskar. It's really an honor to receive this Golden Achievers Award, and I thank Mr. Abhishek Bachchan for his efforts. I do understand that you have to put in a lot of efforts to put everything together, financial efforts and all kinds of efforts. It's not easy to hold such functions, award functions. About 20 years back or 15 years back, we used to wait for a national award or a Filmfare Award or a state award, screen award. Then the then came the era of satellite channels, and all the channels used to have their own awards. But nowadays, many social organizations have such awards, and besides being a pat on our shoulders, it elevates our position in the society. Which actor doesn't like awards? I think all the time we dream of winning an award. So I thank you very much, Mr. Abhishek Bachchan. He has a famous name, but he has not relied only on that famous name. He has worked hard, and this is definitely a feather in my cap. Thank you very much, and thank you very much for your patience. Thank you. Jai Maharashtra. Thank you so much, Varsha ji. My dear friend, who has reached the dizzy heights of success and fame with his production house. And his latest offering is Singhasan Batisi on Sonipal. Ajay!
Hearty congratulations to Dheeraj Kumar ji, and we are really honored, sir, to have you here. May I also have the pleasure of requesting Shri Dheeraj Kumar ji to kindly come on the once again. With some of the biggest names in Bollywood and several big projects, Delnaz is today more popularly recognized as the face of Bigg Boss 6, who fought it out for 93 days in it and emerging as 6th in the race for the title. Hats off to you, Delnaz. Ladies and gentlemen, let's put our hands together once again and congratulate Delnaz Irani. इधर भी आवाज मार दे ठीक हो Excuse me, man. Excuse me here. थैंक यू Ma'am, look here. Ma'am. Ma'am, here. लाइट नहीं मिल रहा Ma'am, almost here. Ma'am, here. Ma'am, here. Ma'am, here. Ma'am, stay. Ma'am, here. New Delhi. Indira Ji also won the State Award for an Oriya film. Indira Ji has recently done a Marathi film which focuses on today's youth and rape issues. A persona with unlimited Hirena on Sony. My dear friends, let's have a... Say here. Say here. Say here. Say here. Say here. So, almost here. Thank you, sir. Ma'am, something. लाइट नहीं मिल रही ब्लू लाइट मिल रही Hello, how are you? टुगेदर फोटोग्राफी have done a better job. Well, I second the thought of our beloved Kamal Hassan ji. My dear friends, क्योंकि क्या मेरा नहीं है hearty congratulations, Ravi ji. खत्म हो गया ना इसका खत्म हो गया Well, Ravi ji, may we also have the pleasure of hearing you. May I request you to kindly come on the... बिल्कुल मेकअप सदा आपके साथ रहे. Okay, moving further, the next award goes to again. Rashmi is eyeing at Philippines. Ladies and gentlemen, let's hear it out for our beautiful Rashmi song. हाजी सर Congratulations, Rashmi, and may I request the gorgeous My husband, Nanish Sandhu, because of they are my backbones. कहते हैं ना कि बेस नहीं हो तो आपकी इमारत है. And अभिषेक जी, आपने मुझे इस ट्रॉफी के लायक समझा because it's very difficult to earn. And मैं हर स्पीच में बहुत Yasser. He played Rahul in Hum Ladkiyan and Qayamat as Saki and has also starred in Shri Koi Hai on Star One and is now playing lead in Uttar as Nalish. Recently walked the audiences with his breathtaking stunts in the reality show Entertainment के लिए कुछ भी करेगा on Sony. My dear friends, let's hear it out for Nanish Sandhu. सर ये थैंक हमको ये लाइट हजम नहीं होती है कब बहुत काम देगा था. हाँ सर.
अवार्ड जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक्टर को अच्छा लगता है जब उनका काम रिकग्नाइज़ किया जाए। वही एक फीडबैक है जो जैसे ऑडियंस हमारी फिल्में देखती है और पसंद करती है और हमें आकर के बताते हैं कि काम अच्छा लगा, उस फिल्म में आपका रोल अच्छा लगा। तो इसी तरह से विद इन द कम्युनिटी हमारी जो इंडस्ट्री है उसके विद इन दैट जब कोई अवार्ड आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी एक पोजीशन जो हमें मिली है जो कि एक अवार्ड के थ्रू मिलती है, which is the industry combined with the audience. So that is, I think it's a very elevating feeling. So I'm very thankful to have got this Golden Achievers Award. Thank एक्साइटेड लग रहे हैं काफ़ी इस अवार्ड को आप मिलेंगे। हाँ, किसी ने कहा है गोल्डन अचीवर अवार्ड एंटरटेनर ऑफ द ईयर एजाज खान। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और यही कहूँगा कि बंसी को लकड़ी सदा समझा किए वो, पर उसके नगमों की धुन कहाँ सुन सके वो। समझा था जिसको पत्थर हीरा है वो तो हीरा, सदा तुमने ऐब देखा हुनर तो न देखा। बस यही कहूँगा कि अभी तो शुरुआत है, अभी नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। इस तरह ही लोगों को, मेरे फैंस को, मेरे प्यारों को, मेरे दुलारों को एंटरटेन करता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और जब तक मेरी सांसें हैं तब तक ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लोगों को एंटरटेन करती रहेगी, लोगों के दुख बांटती रहेगी, उनको हंसाता रहूँगा और हंसाता रहूँगा। जाओ बाबा जाओ सो जाओ। हाँ? अच्छा था ना? अवार्ड ये मायने रखता है कि जो भी अवार्ड देता है अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अवार्ड से क्या होता है, तुम्हारा इनकरेज, मतलब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है, तुम इनकरेज होते हो कुछ चीज़ करने के लिए, तुम्हें एक उम्मीद मिलती है कि नहीं जो तुम सोचते हो वो सही है, तुम्हारा सपना सही है, तुम जो काम कर रहे हो वो सही है। बहुत अच्छा फील होता है। एक मुकाम पर है इस वक्त आप, अब क्या झोली में नजर नहीं आया है कुछ? हाँ, मेरी फिल्म है लव डे, नेक्स्ट 80% कंप्लीट है। अभी बिग बॉस से निकला हूँ, 20% उसकी शूटिंग बाकी है, वो ख़त्म करूँगा। लव डे मेरी फिल्म है एज ए हीरो जो लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद पूजा भट्ट जी की फिल्म है नर्क। तो काम तो है अल्हम्दुलिल्लाह। संजय गुप्ता जी की फिल्म है, बाकी तो अल्लाह मालिक। अवार्ड दिन में, साल में कई अवार्ड होते हैं और एक इमेज मिलती है इंसान को अपनी काबिलियत साबित करने की। आजकल बहुत ज़्यादा अवार्ड दिख जाते हैं, बहुत से नहीं नजर आते। एज ए स्टार, एज ए एक्टर क्या कहना चाहोगे? चल रहे हैं ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, चल रहे हैं ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, तुम भी कुछ ले दे के हमसे मोहब्बत कर लो। है यही है भाई, लेकिन ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे मिला है। Jonita Gandhi. अवार्ड लाइफ में क्या मायने रखता है? I think it's really important to encourage new talent. I'm new here. I've only been here for 2 years, so having an award I think really pushes me to further my efforts, and it's really encouraging to see that our efforts are being rewarded and people are noticing. So it's a very, very important thing for us. Yeah. आपका कदम बॉलीवुड में रखा जा चुका है, कितनी नर्वस थी और कितनी एक्साइटेड? I'm still nervous. I'm still shaky. I was pretty nervous because it's a room full of, amazing people. So just to stand in front of them was pretty nerve-wracking, but it's an awesome feeling. न्यू हैपनिंग क्या चल रही है इस लाइफ में?
Just working, traveling, shows, recording. That's it. किस तरह के गाने गाना पसंद करते हैं? आज जो गाने हो जाए वो अवार्ड के लिए। Okay, I'll sing from my song from Chennai Express. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस, हो चेन्नई आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस। Get on the train, baby. Thank you so much. Thank you. Goes to her in recognition of her powerful performance in play. My dear friends, let's put our hands together once again and congratulate Shravan. सबसे पहले तो मुबारकबाद होगा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं, आई थिंक मैं अवार्ड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मानती हूँ दैट अवार्ड्स इसलिए होते हैं ताकि आपको इनकरेज करें अच्छा काम करने के लिए, विद द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स एंड आप सबकी दुआओं से, ऑडियंस की दुआओं से। आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड आई हैव बीन वर्किंग एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग। तो मैं हमेशा कहती हूँ अवार्ड इज़ जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट देता है दैट आपने काफ़ी कुछ किया है बट और बहुत कुछ बाकी है। एंड दैट्स व्हाट आई टेल पीपल दैट कभी भी एक्टर मरता नहीं है, एक कलाकार हमेशा जिंदा रहता है लोगों के दिल में, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई एम नॉट दैट येट एक्साइटेड बट आई एम श्योर देयर इज मोर टू कम। जिम्मेदारी बढ़ जाती है अवार्ड पाने के बाद? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा जिम्मेदारी तो है ही। मैं हमेशा मानती हूँ दैट आपको अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो जिम्मेदारी तो हमेशा होती है, थी और रहेगी जब तक हम एक्टिंग करेंगे, हम कलाकार हैं। तो for any actor, it's going to be his or her forte to deliver, and हम करते रहेंगे और लोगों को entertain करते रहेंगे। Thank you. Put our hands together and people, let's give him a standing ovation. I request everyone to rise. नीचे बैठो यार, हमारा स्टैंडिंग है तो हमारा नीचे। Congratulations, Parikshit ji, and we are indeed really honored to have you here with us. बैठिए बैठिए, हमारा नीचे होता है ना। Parikshit ji, may I request you to सच्चे लोग सच बोलेंगे। सबसे पहले बताइए अवार्ड क्या मायने रखता है आपकी लाइफ में? मेरे लिए हर एक अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये साबित करता है कि आपने अच्छा काम किया है, आपके हार्ड वर्किंग की वजह से आपको एक अवार्ड मिलता है। एंड डेफिनेटली एक अवार्ड जब मुझे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, और अच्छा काम करो और मन लगा के लगन के साथ काम करो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जो बहुत अच्छा लगता है, और उससे ये भी पता चलता है कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे काम को कितना अच्छा लगा उन्हें, और मेहनत करके और अच्छा काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। अवार्ड जब मिलते जाते हैं तो लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। डेफिनेटली मतलब उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं, और इसीलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा काम करना पड़ता है, ऑडियंस को खुश रखने के लिए उनको और अच्छे से एंटरटेन करना पड़ता है। सो डेफिनेटली हर एक अवार्ड के साथ साथ मैं अपने ऑडियंस को यही प्रॉमिस करूँगी कि मैं आगे और अच्छे से काम करूँगी और आप सबको एंटरटेन करते रहूँगी। कौन सा अवार्ड जिसके अवार्ड के आप अगला कुछ अच्छा ही करूँगी, कुछ खास ही करूँगी जिसके लिए मुझे वापस अवार्ड मिले, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही काम करूँगी। क्या न्यूज़ चलने वाला है?
क्या नया चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं, जैसे आप सबको पता है कि उत्तरायण इज़ गोइंग ऑफ एयर ऑन दी 16। तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है क्योंकि 6 साल मैंने लगातार काम किया है, तो अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी। देखते उसके बाद व्हाट फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर मी। डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करूँगी, अच्छे से मेहनत करूँगी। थैंक यू सो मच। Congratulations, sir. The next award in the category goes to Mr. Gaurav Patel. लगा भाई, जल्दी लगा। ज़्यादा देखिए 23-24 साल हो गए सिनेमा इंडस्ट्री में। पूरा देश जानता है, हर भाषा में काम करता हूँ मैं, और 250 फिल्म करने के बाद जब अवार्ड मिलता है तो बच्चों की तरह खुश हो गया। पता नहीं क्यों माथे पे पसीना आने लगा। बहुत खुशी होती है एक एक्टर को अवार्ड देना। बहुत, ये नहीं कि भाई ये भी सुपरस्टार हैं या ये हैं, ये है अवार्ड, और कि ये सुपरस्टार हैं या ये हैं, वो नहीं। वो अमित जी भी हों, शाहरुख खान हो या हम हों, कोई भी हो जिसको अवार्ड मिलता है, वो बच्चों की तरह कलाकार खिल जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर उसका खून दौड़ने लगता है, फिर लगता है कि और 2-4 तगड़ी फिल्में करें और देश को और आनंद दें और अपने फैंस को और पगलाएं। तो यही खुशी है। रवि जी, कुछ संघर्ष के दिन याद आते हैं जब कभी दिमाग में आया हो यार मुझे भी अवार्ड मिले, कभी ऐसा काम? बस संघर्ष तो लोग चल कर आए, मैं रेंग कर आया हूँ। मैंने इतने संघर्ष किया है कि अगर मैं शुरू करूँ तो भाई पूरा एक आप लोगों के 3-4 एपिसोड बन जाएंगे, या 10 एपिसोड या 100 एपिसोड। मेरी संघर्ष की कहानी काफ़ी लोग जानते भी हैं और मज़ा है। लेकिन खुशी उस दिन भी बड़ा, उस संघर्ष में मैं दुखी नहीं था, उसमें भी खुश था। कम खाना मिलता था तब भी चलता था, नहीं खाते थे, वड़ा पाव भी खाते थे तब भी खुश थे, ऐसे भी बड़े खुश हैं। वो संघर्ष नहीं रहता तो शायद मैं नहीं रहता आज, और अभी भी लड़ने की, अभी भी कुछ तलाश जो जारी है। बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान हमें अभी तक जीवित रखें और देश अभी तक चाह रहा है कि मैं एक्टिंग करूँ, और इतने सालों के बाद भी लोग चाह रहे हैं, फैंस इतने सालों से हम सुपरस्टार की कुर्सी अभी तक हमारे पास है। अब ईश्वर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि अभी तक हम 16 साल हो गए सुपरस्टार बने हुए हैं, और अभी भी क्रेज़ है हमारा। अभी नई फिल्म पंडित जी बताई ना बिया का, वही पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। वो एक अद्भुत सिनेमा जहाँ से भोजपुरी सिनेमा का परिवर्तन होगा। शुरुआत तीसरे दशक में हमने की थी, अब दोबारा परिवर्तन का समय आया तो दोबारा हमने प्रोड्यूस की फिल्म। अब एक फिल्म इंडस्ट्री ये फिल्म लगने के बाद एक नई दिशा में जाएगी, और हम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड लगाना चाहते हैं इस फिल्म को, क्योंकि उस लेवल पर टेक्निकली भी बनाई है कहानी के लिए, और परफॉर्मेंस भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आ जाएगा इस फिल्म के बाद। बिग बॉस सीजन के बारे में क्या कहेंगे यार? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, ये लड़ाई झगड़े बड़ा मज़ा आता है। पहले सीज़न से हमने शुरुआत की थी, ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, तो अच्छा लगता है, लड़े झगड़े मज़ा लें लोग। पॉपुलर होने के लिए लड़ते झगड़ते हैं, वो अब देश जान गया, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, मतलब मारपीट ना हो, गाली गलौज ना हो। बिग बॉस में सब चीज़ फ्रस्ट्रेशन आता है, चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ, सब कुछ रियल है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो बिग बॉस में जो भी आप लोग देख रहे हैं सब रियल है, बिकॉज आदमी खुद ही वैसा बिहेव करने लगता है। 2-3 महीने बंद रहो तो आप पागल हो ही जाओ। मैं नाचने लगता था, मैं खुश रहता था। मैंने इनिशियली छत वत तोड़ा था, माइक चबा गया था, गाली गलौज देता था मैं, फिर 15 दिन बाद मैं ठीक हो गया था वहाँ। लेकिन कुछ लोग नहीं ठीक होते वहाँ पे, मैं बहुत कुछ वहाँ से पा के निकला। 3 महीने रहा था मैं, लास्ट में मैं निकला था। लेकिन एजाज बता रहे हैं उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई, जस्टिस हुआ है, बाइस होता है वहाँ पे स्टारों के साथ। जैसे और भी कई लोगों ने इस तरह की हरकत की, उन्हें रखा गया और उन्होंने थोड़ा झगड़ा किया तो 9 दिन उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मैं इसमें उस मैटर में नहीं बोलूँगा, बिकॉज हमारा बोलना अच्छा नहीं। और ये अंदर क्या हुआ था वो सिचुएशन में हम लोग नहीं थे, सो 24 घंटे में 1 घंटा दिखाया जाता है, तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ वो हमको पता नहीं। तो अपना कुछ भी स्टेटमेंट देना हेडलाइन के लिए स्टुपिडिटी लगेगा। थैंक यू।
Very warm welcome to her and felicitate Ashka Buradia. Born in Ahmedabad, this pretty 27-year-old Guju as a translator after doing her schooling from St. Louis School in Ahmedabad. Besides Kusum, Ashka, who also has to her credit quite a few serials like Sindoor Tere Naam Ka, Kahin To Hoga, Lagi Tujhse Lagan, etc. and is now gaining popularity in the serial Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap. Friends, let's give her a huge round of applause. Also, may I request the gorgeous Ashka to kindly come here and say a few words to our beautiful audience out here. Excuse me, थोड़ा आइए ना, नजदीक आइए ना, थोड़ा इधर आइए। अरे जब यार ना थोड़ा। Excuse me, you ready? मिला? एक सेकंड। Your center. हम कंटिन्यूसली बोल देते हैं। आज के दिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो पुराने दोस्त किसी अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं तो एक वो बेहतरीन मौका होता है अपने दिलों की बात कहने के लिए, और दिलों के जज्बात शायद हम शब्दों से नहीं कहते, अपनी आंखों से कहते हैं। आज परीक्षित अनिल से एक बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, तो मैं दिल से कहना चाहूँगा कि वाकई आज मुझे तो मज़ा आ गया है अवार्ड फंक्शन में आने का और साथ अपने पुराने दोस्तों को मिलने का। गोल्डन अचीवर्स अवार्ड अभिषेक बच्चन साहब जो बहुत दिल से कई सालों से बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, हम सब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और मैं समझता हूँ कि अनिल तो शायद उनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और परीक्षित भी कुछ अरसे से हैं। पिछले साल आप लोगों ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। परीक्षित मैं तो ये कहता ना कि लाइफ बिगिंस व्हेन यू आर व्हाट इज़ योर एज नाउ। मैं रिवील नहीं कर सकता अपनी एज। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लगभग हम दोनों ने मिलकर कैरियर एक साथ शुरू किया था और आज भी हम जनता को एंटरटेन कर रहे हैं जी। 40 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं कम से कम। यस थैंक यू। परीक्षित आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा है कि मुझे भी बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ी खुशगवार शाम है और एक अजीब-व-गरीब माहौल पैदा हो गया। ये सारे अपने पुराने अजीज़ दोस्त मिले, इनके साथ तो हम क्रिकेट भी खेल चुके हैं और इनके साथ काम कर चुके हैं इनके सीरियल्स में, और बहुत लंबा और बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा है। और मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका, बच्चन साहब का, कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि हम इकट्ठे मिलें, और ऐसे और मौके मिलने चाहिए क्योंकि मज़ा आता है। हालांकि हम एक दूसरे को मिलते नहीं हैं अक्सर, मगर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार के समान है, और जब पुराने साथी, पुराने अपने रिश्तेदार मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। इट्स बीन अ लवली लवली इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू जी। अवार्ड तो सभी को अच्छा लगता है, एक्टर्स को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको बहुत सारे अवार्ड मिले। ऐसा लगता है कि ऐसा जब कोई भी अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है कि कोई भी अपना पीठ थपथपाता है, उसके साथ अपनी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बढ़ जाती है, और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा काम देख रहा है, उसको सराह रहा है। ये जो भावना होती है बहुत बड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है, हम स्टेट अवार्ड नहीं जीत पाते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें अवार्ड्स देते हैं तो ऐसा बहुत स्पेशल लगता है। ऐसा लगता है कि जो मेरा काम जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था उसको भी रिकग्निशन मिली। मैम, आपकी लाइफ का सबसे यादगार अवार्ड फंक्शन? यादगार तो मेरा पहला था स्टेट अवार्ड जो मुझे मिला था महाराष्ट्र शासन का। गम्मत जम्मत मेरी फिल्म थी, पहली फिल्म। उसके लिए मुझे 1988 में अवार्ड मिला था मेरी पहली फिल्म के लिए, और उसके 10 साल बाद 98 में फिर एक बार मुझे महाराष्ट्र शासन का प्राइज़ लगना चाहिए फिल्म के लिए।
तो ये बहुत यादगार पल है। मैम आइए ना। रश्मि जी, रश्मि मैम, रश्मि वाइट कलर से उधर ठोक रही है। मैं ना लूँ सब है। रोलिंग। रश्मि, सबसे पहले अवार्ड क्या मायने रखता है जिंदगी में? बहुत मायने रखता है। जब स्कूल में हम रिज़ल्ट का वेट करते थे हर एक साल बाद कि क्या ग्रेड मिलेगा, उस हिसाब से अवार्ड्स के भी हम लोग वेट करते हैं। हर एक साल बाद जब अवार्ड सेरेमनी होती है तब वेट करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है या हमें मिल भी रहा है कि नहीं। इट्स अ वेरी बिग एंड अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इससे हम इंस्पायर्ड होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं इसे पाने के लिए, बिकॉज़ ये मिलना बहुत मेहनत का काम है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अभिषेक जी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। रश्मि, जब अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी कहीं और बढ़ जाती है, ऑडियंस को और जिम्मेदारी हो जाती है कि अब कुछ नया होगा, कुछ शोल्डर पे जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा भी हमें बहुत जिम्मेदारी इसलिए लगती है क्योंकि लोग हमें देखते हैं हम क्या किरदार निभाते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, उस हिसाब से हम लोगों को एक्ट भी करना पड़ता है। तो जो हर एक शब्द, हर एक पहनावा, हर एक जो हम लोग दिखाते हैं ऑन स्क्रीन, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इवन हम जब बाहर होते हैं, लोगों से जब मिलते जुलते हैं, उनकी काफ़ी उम्मीदें होती हैं हमसे, और ऑडियंस हमारे मतलब कई बार ऐसे लगता है दे बिकम किड, बच्चों की तरह हमें कंप्लेन भी करते हैं ऐसे क्यों दिखाया। अब वो साड़ी जो थी ना, वो नेक पीस के साथ ना मैच नहीं कर रही थी, बट लाइक वो रोने वाला सीन आपने बहुत, हम भी रो रहे। ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो बहुत अपनापन लगता है। आपकी यादगार, सबसे आपका यादगार अवार्ड फंक्शन वो कौन सा था जो आपको बड़ा याद रहा है आपका? मेरा फर्स्ट टेलीविज़न अवार्ड था ITA का, जो मुझे पहला अवार्ड मिला था, और स्टार प्लस पे वो था, और उस टाइम पे मुझे क्रिटिक अवार्ड, मेरा फर्स्ट क्रिटिक अवार्ड जो मुझे दिया गया, मैं रो पड़ी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था दैट क्रिटिक अवार्ड लोगों की, जनता के जो प्यारे होते हैं उन्हें मिलता है। सो उन कैटेगरी में मुझे पता था कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा अवार्ड वो मुझे नहीं पता था। तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। रश्मि मैम, चैनल